Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE NEET on PracBee practice app. Download now. Now let's talk about Kepler's law. So there are three laws that we need to remember, Siddharth. Fine. So the first law is called as law of orbit, and it says that all planets move in an elliptical orbit about the sun. You can also replace planet by satellite and sun by planet. Okay, all planets move in elliptical orbit about the sun, with sun located at one of the sum of distance from 2 points is constant. ये एक ऐसा शेप होता है जिसमें 2 पॉइंट से दूरी किसी भी पॉइंट का होगा, ऐड करके कीजिएगा तो वो कांस्टेंट होगा. ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं इसे फोकस कहते हैं. तो मैं देखिए, सपोज कीजिए आपने एक पिन लिया, एक दूसरा पिन. यू टुक 2 पिन्स, ठीक है, ये नेल्स, 2 नेल्स लिया आपने और जमीन में ड्रिल कर दिया. फिर आपने एक धागा लिया, यू टुक अ स्ट्रिंग. उस स्ट्रिंग को आपने इन दोनों के बीच में, ढीला सा स्ट्रिंग है उसे आप इन दोनों के बीच में बांध दिया आपने. It's a loose string. The length of the string is greater than the distance between the 2 points. Let's call this 2 point as F1 and F2. फिर आप एक पेंसिल लिए, ठीक है, और आपने क्या किया, एक पेंसिल को इसमें कहीं पे भी रैंडमली कहीं पे भी आपने बांध दिया. फाइन, आपने रैंडमली कहीं पे भी इस पेंसिल को बांध दिया. और फिर आपने क्या किया, इस वायर को पूरा टाइट कर दिया कि इस तरह से कि ये पेंसिल यहाँ पे है, और आपने इस पेंसिल को घुमाना स्टार्ट कर दिया तो आपको एक एलिप्स मिल जाएगा. ये जो डिस्टेंस होगा L1 और ये जो डिस्टेंस होगा L2, L1 प्लस L2 जो होगा वो कांस्टेंट होगा. तो इस तरह से आपको एलिप्स मिल जाएगा. सेकेंड इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ एरिया और लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी. Basically this is called as law of area only. So do you know this law? The area covered by the radius vector in equal time interval is equal, or simply the aerial velocity is constant. Now let's understand this, what I am trying to say. Let's say this is the sun, this is the planet. Okay, so if I connect a line from sun to planet, this is called as radius vector. Fine. So the area covered by the radius vector is equal time interval. Suppose a time delta t passes and the planet moves from, let's say, point A to point B. So the radius vector has moved to this point. Okay, Siddharth? Yes. So this area, the area covered by the radius vector is equal time interval. And let's say the time taken to move from A to B is dt seconds. Got it, Siddharth? Yes. So this, now suppose the planet has slowly moved to another point, let's say C. And now I look from a point C to another point D. And the time taken by the satellite or the planet to move from C to D is again dt seconds. Okay. So that this area is this one. This time the radius vector, this is the area. Let's call this as A2, and let's call this, or let's call this as dA2, and let's call this as dA1. Since the time is equal, so dA1 is equal to dA2. Got this? So किसी भी 2 पॉइंट के बीच में
जो एरिया होगा वही एरिया किसी और दो पॉइंट के बीच में भी होगा यदि टाइम इंटरवल सेम है तो। हाँ, इसे यदि हम दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दें तो कोई प्रॉब्लम? नो। तो दिस dA by dt को हम कहते हैं, dA by dt कहलाता है एरियल वेलोसिटी। तो ये कह रहा है कि एरियल वेलोसिटी जो हमेशा रहता है वो सेम रहता है, एरियल वेलोसिटी कभी भी बदलता नहीं। मैंने दो रैंडम पॉइंट लिया, उन दोनों रैंडम पॉइंट का एरियल वेलोसिटी सेम है। सो वी से दैट dA by dt is constant। ओके, अब इसका देखिए एक यहाँ पे डेरिवेशन है जिसमें मैं टाइम स्पेंड नहीं करूंगा क्योंकि वो डेरिवेशन का कोई जरूरत नहीं है यहाँ। सो डायरेक्टली मैं आपको डेरिवेशन का रिजल्ट बता दे रहा हूँ। आई एम लिविंग द डेरिवेशन पार्ट, नॉट नीडेड। सो dA by dt जो होगा वो L by 2m आता है। dA by dt जो होता है इसका फॉर्मूला होता है L by 2m। L is angular momentum, that is mr cross b। ये फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, आई होप आपको पता होगा। ठीक है, और m जो है वो मास ऑफ प्लैनेट, नॉट सन, प्लैनेट का मास है। सो दिस इज द ओनली थिंग दैट आई एम लिविंग हियर। तो चलिए आप इस पे एक क्वेश्चन मैं आपसे सिंपल सा पूछता हूँ। यहाँ पे सन है, प्लैनेट एक टाइम पे यहाँ पे था, फिर चलता चलता यहाँ पे आ गया। ये डिस्टेंस हम r1 कह देते हैं, ये डिस्टेंस r2 कह देते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। ये बताइए v1 और v2 में से कौन सा ज्यादा होगा? सेम होगा। चलिए dA by dt कांस्टेंट है, मतलब L by 2m कांस्टेंट है। L का वैल्यू क्या है? mvr। क्योंकि यहाँ पे v और r के बीच में 90 डिग्री है, तो इसीलिए r क्रॉस b जो होगा वो br हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2m, mm कट गया, सो दिस इज कांस्टेंट। सो vr इज इक्वल टू कांस्टेंट। वेलोसिटी और रेडियस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट है, मतलब v बढ़ेगा तो r क्या होगा? घटेगा ना। तो r1 is less than r2, this means v1 is greater than v2। तो जब प्लैनेट पास आता है किसी भी सन के तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। कहते हैं ना कि ये प्लैनेट सन के बहुत पास चला गया तो उसका स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि उसको सेम एरिया कवर करना रहता है सेम टाइम इंटरवल में। ओके, ये बताया था ना कि सेम एरिया कवर करना रहता है तो उसको फास्ट चलना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस सेम नहीं कवर करता है, एरिया सेम करता है। थर्ड लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड कहता है कि द स्क्वायर ऑफ टाइम is directly proportional to cube of semi major axis। I hope semi major axis आपको पता है क्या होता है। So t square is proportional to a cube। सेमी मेजर एक्सिस पता है? एलिप्स का मतलब जो लंबा वाला पार्ट होता है उसको सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं आधा, और जो छोटा वाला पार्ट होता है उसे सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं। सो इसके साथ हमने खत्म कर दिया ये ग्रेविटेशन चैप्टर, और ये 3 केप्लर्स लॉ आपको याद रहे।